خبر آپ کو دیں، طوفانی بارشوں کے بعد سے دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن تاحال متاثر ہے۔ مصباح الحق، کامران اکمل، عمر اکمل امریکہ جاتے ہوئے دبئی ایئرپورٹ پر پھنس گئے ہیں۔ مصباح الحق، کامران اکمل، عمر اکمل سمیت کئی پاکستانی 27 گھنٹے سے دبئی ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ مصباح آلموسٹ 27 گھنٹے ہو گئے ہم لوگوں کو۔ ہاں جی بالکل 27 گھنٹے کیا، اب تو ایسا لگتا ہے 6 مہینے کی جیل کاٹ لی ہم نے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں ہمارا یہ گیٹ ہے B14 اور لوگ دیکھیں کیسے لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ دوبارہ شیڈیول کی تھی فلائٹ 9:30 مارننگ کی دبئی ٹائم کی، تو اب انہوں نے 9:35 سے 11 سے 12 سے 12:40 12:40 سے 1:20 پہ ایسے یہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا نہیں ہے ادھر۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں معیشت کی آدھی خرابی بجلی شعبے کی نااہلی ہے، بجلی کا شعبہ ٹھیک ہو جائے تو معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بجلی چوروں کے لیے کوئی معافی نہیں، کروڑوں روپے کی اوور بلنگ کا سامنا ہے، اوور بلنگ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا، سسٹم میں اتنا خلا ہے کہ اسے ہنگامی بنیاد پر ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کا تقریباً آدھا جتنی بھی خرابی ہے بجلی کے محکمے کی انفیشنسیز کی وجہ سے ہماری اکانومی کافی سفر کاری ہے۔ جو ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے، سالانہ نقصان کا حجم تقریباً اس سال 560 ارب روپے کے پہنچ جائے گا، 300 کچھ ارب روپے ہوگا جو ہم یونٹ کھا جاتے ہیں۔ آفیسرز، لائن مین، لائن سپرنٹینڈنٹس، میٹر ریڈرز اور ہمارے کنزیومرز جو یہ چوری کرتے ہیں ان کے لیے کوئی معافی کا کھاتا نہیں ہے۔ جس نے جتنا احتجاج کرنا ہے، جو چوری میں ملوث ہے کرتا رہے، ہمارے اوپر جوں بھی نہیں رینگنی اس کی۔ کروڑوں روپے کی اوور بلنگ ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر میٹرز ڈیفیکٹو ہیں، تقریباً لاکھ میٹروں کا 3.5 کروڑ میں سے جواب دیا۔ میں نے مزید پوچھا کہ باقی ٹھیک ہیں، باقیوں سب کے میٹر کی تصویریں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں شرکت کے لیے 28 اپریل کو سعودی عرب جائیں گے۔ راجہ محسن اعجاز سے مزید جانیں گے۔ راجہ محسن، آگاہ کیجیے گا اور کون کون جائے گا وزیر اعظم کے ہمراہ؟ دیکھیے، اس دورے کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شامل ہوں گے، اور یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے جو 28 اور 29 اپریل کو ہوگا۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو دورہ بنیادی طور پہ ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے ہو رہا ہے، تاہم اس دورے کے دوران جو ریسنٹلی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، جو اعلیٰ ایک سطح کا سعودی وفد ریسنٹلی پاکستان کے دورے سے ہو کر واپس گیا ہے، اور اس سے پہلے جو رمضان کے آخری عشرے میں وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ، تو ان دوروں کے دوران جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت اور جو اب تک کی پیش رفت ہوئی ہے اس کو بھی مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہیں سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار OIC اجلاس کے لیے گیمبیا روانہ ہو جائیں گے، جہاں پہ وہ OIC کے جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا اس میں 2 سے 3 مئی تک جو ہے وہ شرکت کریں گے، اور وزرائے خارجہ سے وہ اجلاس میں شرکت کے ساتھ ساتھ جو دو طرفہ ملاقاتیں ہوں گی OIC ممبر کنٹریز کی وہ بھی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر 4 اور 5 مئی کو وزیر اعظم جو ہے وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، جو OIC کا سربراہی اجلاس ہوگا گیمبیا میں، اور اس سلسلے میں جو تمام تر تیاریاں ہیں انہیں حتمی شکل دے دی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے راجہ محسن۔ پاک فوج کا پسنی اور گوادر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کے جوان سول انتظامیہ سے مل کر پسنی میں نکاسی آپ کے لیے موجود ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے پسنی میں متاثرہ خاندان کو فوری امداد فراہم کی۔ ریسکیو ٹیموں نے سیلاب میں پھنسے 3 مسافروں سمیت ایک گاڑی کو بھی نکال لیا۔ نارووال کے علاقے چندوال کے قریب سرکاری گاڑی کی مبینہ ٹکر سے 23 سالہ نوجوان ابوبکر جاں بحق ہو گیا ہے۔ فاروق انعام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے، ان سے مزید جانیں گے۔ فاروق، یہ کس کی گاڑی تھی جس سے یہ نوجوان جاں بحق ہوا ہے ٹکر لگنے سے؟ جی، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پایا گیا ناروال چندوال کے قریب، جہاں پر مبینہ طور پر جو ایک نوجوان ابوبکر جاں بحق ہوا ہے، اس کے جو کزن ہے رضوان، ان کا الزام ہے کہ یہ مبینہ طور پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیکورٹی اسکواڈ کی جو ایک گاڑی جو صبح گزر رہی تھی، اس کی یہ مبینہ ٹکر سے یہ نوجوان جاں بحق ہوا ہے۔
इसके बाद जो इस हवाले से हमने पुलिस का मौक़िफ़ लिया तो पुलिस का ये कहना था कि ये वाक़या रोनमा हुआ है। हमने इसके जो कज़न है इसकी मदयत में सरकारी जो एक जो गाड़ी है उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाक़या की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। ठीक है फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। अरियाला जेल में बानी पीटीआई को सिक्योरिटी फराहमी का हाई कोर्ट में केस, वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फारूक समी से। जी फारूक समी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया है और वजारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडियाला जेल में जो है दहशतगर्दों के हमले की इतलात हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट जो है वो रावलपिंडी है। इसके साथ साथ अहम शख्सियात तनसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और ये जो दहशतगर्द हैं इनको गैर मुल्की एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है और कलदम ग्रुप जो है इसमें इस्तेमाल होने का खदशा है। इमरान खान समेत हर शहरी की जिंदगी और उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी, हिफाजत, अमन अमान और सूबाई मामला है। इस सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। सिर्फ इमरान खान की हिफाजत की दरख्वास्त के लिए जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाए क्योंकि सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना जो काम है वो सही तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फारूक। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में दरख्शा पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मुलजिम मोइज़ नसीम की मौत को गैर तबई करार दिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। बिल्कुल, लेकिन दरख्शा पुलिस के हाथों मुबैना तशद्दुद से एक ज़ेर हिरासत मुलजिम मोइज़ नसीम हलाक हो गया था, जिसके बाद इब्तिदाई तौर पर जो पुलिस सर्जन कराची उनकी जानिब से बताया गया था कि ये मौत गैर तबई है। लेकिन अब हमने इसकी इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी हासिल कर ली है जिसके मुताबिक मुतवफ़ी के जिस्म पर 13 जगहों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और पहले सफ़े पर ही इसको गैर तबई मौत करार दिया गया है। मोइज़ नसीम को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया और ये भी बताया गया कि मोइज़ नसीम के कपड़े खून से भरे हुए थे और लाश पर मौजूद कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। नाजुक अज़ा पर करंट लगाकर बदतरीन तशद्दुद किया गया और कमर के जो पिछले दोनों हिस्से पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। मुतवफ़ी की कनपटी पर तशद्दुद और दिमाग में खून भी जमा हुआ था और ज़्यादा तशद्दुद की वजह से दिमाग की शरानें फटी और सांस रुक गया था और नाक के दोनों नथनों, मुंह और कान से भी खून बह रहा था। दोनों आंखें सूज चुकी थी जबकि होंठ के बाहर और अंदर भी चोटें आई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों कंधे कमर तक सूज कर नीले हो गए थे और जिस्म इंसानियत सोच तशद्दुद की वजह से सूज चुका था और डॉक्टर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मुकम्मल तफसीलात जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और दीगर तफसीलात उसमें सामने आ सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने चाकू हमले में जख्मी पाकिस्तानी मोहम्मद ताहा की आयादत की। सिफारत खाने का कहना है मोहम्मद ताहा और साथी फराज अहमद ने हमलावर का मुकाबला करके गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, मजीद आगाह करेंगे। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले बूदी जंक्शन चाकू हमले के जख्मी पाकिस्तानी और एक पाकिस्तानी ने इसी अनफॉर्चुनेट हादसे में उनकी जान गई। तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने हॉस्पिटल में जो जख्मी है इस हमले के मोहम्मद ताहा उनकी इयादत की है और उन्होंने मोहम्मद ताहा की जल्द सेहतियाबी के लिए हमदर्दी और दुआओं का इजहार भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में जो उनकी बहाली के अमल में पाकिस्तानी सिफारतखाना हर मुमकिन मदद करेगा। इसके साथ साथ जाहिद हफीज चौधरी जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा कि दो जो पाकिस्तानी शहरी थे मोहम्मद ताहा और उनके साथी फराज अहमद ताहिर, उन्होंने इस चाकू हमले के दौरान बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया और फराज ने अपनी जान दे दी और ताहा ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दूसरों को बचाया और दूसरों को बचाते हुए और इनकी जो इन दोनों की जो बहादुरी है और जो कुर्बानी है इसे हमेशा याद रखा जाएगा। शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सदा की अदालत हाई कोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स रूल्स में तरमीम ज़रूरी है। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम करती है। टेक्नोलॉजी ने रजिस्ट्रीज को तबाह कर दिया है क्योंकि अब वीडियो लिंक आ गई है। वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री रखें या दोनों रखें, चाहता हूँ कि
सुप्रीम कोर्ट फुल हो जाए। रूल्स कमेटी एक बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर अटॉर्नी जज, उसकी रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए सबकी राय लें। रिक्वेस्ट ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जितनी वो वैकेंसीज हैं उनको फिर भरना शुरू करें। हमारा इंस्टीट्यूशन, और मैं इंस्टीट्यूशन को नहीं समझता जुडिशरी अलग है और लॉयर्स अलग हैं, हम साथ हैं। तक सुबह की बात है, मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ बिकॉज आइन का तकाजा ही है कि वो इंडिपेंडेंटली और आप इंडिपेंडेंटली अपने अपने मसाइल भी हल करें। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहती हैं मेयर शराफत अली टिक टॉकर वज़ीर आला को हरा चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस टिक टॉक तक है। फॉर्म 47 वाले बाप बेटी तनूर पर रोटियां पका रहे थे। आटे की बोरी पर नवाज शरीफ की तस्वीर छापने से गुर्बत दूर नहीं होगी। ज़िंदगी में कभी कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन खान साहब से वफ़ादारी के लिए, और खान साहब ने चूँकि मुल्क से वफ़ादारी की है, तो उसकी सज़ा के तौर पर जो शहर में आज तक देखे भी नहीं है, उन शहरों के अंदर भी मुझे उन्होंने बहुत सारे दहशतगर्दी के FIR में नॉमिनेट कर दिया है। मैं वैसे भी 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी, लेकिन पूरे पंजाब के अंदर मेरे ऊपर उन्होंने गद्दारी दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। जो असल टेररिस्ट हैं वो मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, और जो PTI के लीडरान है उनको दहशतगर्द बना के कोर्ट्स के अंदर जो है वो दाखिल किया जा रहा है। पंजाब के अंदर मेयर शराफत अली जो है वो इस टिक टॉकर वज़ीर आला को हरा चुके थे। अब इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ टिक टॉक तक है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने इमेजेस देखे हों तो बाप बेटी दोनों जो है फॉर्म 47 वाले वो तंदूर पे रोटियां पका रहे थे। आटे की बोरी के ऊपर अवाम के पैसों से आप नवाज शरीफ की तस्वीर छापने से आप समझते हैं कि गुर्बत दूर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। खबर आपको ले, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हुकूमती कमेटियों में शामिल न किए जाने पर नाराज हो गए हैं। जरा इस हवाले से क्या बताते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए नईम। जी बिल्कुल, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा नाराज़गी शो भी कर रहे हैं अहम रहनुमा नून लीग के, उनकी असल जो बड़ी वजह है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन किया गया दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटियों का। इसमें जो हारे हुए नून लीग के अहम रहनुमा हैं उनको शामिल नहीं किया गया, जिनमें सबसे पहले राना सनाउल्लाह है, फैसलाबाद की कमेटी में वो नहीं है, फिर ख्वाजा साद रफीक लाहौर की कमेटी में नहीं है, फिर केरूपुरा से जावेद लतीफ नहीं है, और गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर और डॉक्टर नसार चीमा जैसे अहम रहनुमा भी शामिल नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गुजरात में आबिद रजा जो हैं वो हारे हुए हैं, लेकिन उनको गुजरात की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में शामिल किया गया। इससे लगता है कि ये कोई असूल नहीं है कि सिर्फ जीते हुए होंगे, हारे हुए नहीं होंगे। इससे लगता है कि जैसे कोई टारगेट किया गया है कि सिर्फ अहम रहनुमा जो हैं वो उन कमेटियों में शामिल नहीं। और एक इनमें से अहम रहनुमा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये अफसरान को पैगाम दिया गया है कि आपने इन लोगों के अहम रहनुमाओं से काम नहीं करने। अब इनमें नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी हैं और साद रफीक बहुत बड़ा नाम है, उनको भी लाहौर की कमेटी में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें DPO और जो अहम महकमे हैं ज़िली सतह पर उनके अफसरान शामिल हैं, और इन्हें सरकारी सतह कहा गया है कि ज़िली लेवल पर तरक्याती और इंतजामी अमूर ये कमेटी देखेगी, यानी इन्हें बहुत बड़ा इख्तियार दिया गया है। और ये तमाम जो हैं ये हल्के की सियासत करते हैं रहनुमा, इनका बड़े स्टेक्स होते हैं, लेकिन उनको अहम रहनुमाओं को शामिल नहीं किया गया। और आबद रजा गुजरात से हारे भी हैं और वो शामिल भी हैं, और गुजरात की कमेटी के कन्वीनर जो है शाफिर हुसैन है मुस्लिम लीग काफ के। इसी तरह मुख्तलिफ दूसरी कमेटियों में भी नून लीग के रहनुमा जीते हुए हैं, लेकिन इन रहनुमाओं को नहीं शामिल किया। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। टॉप सिटी इंक्वायरी कमेटी फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया वज़ारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई है। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। कमेटी इल्ज़ामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। ज़राए का कहना है कि कमेटी इल्ज़ामात साबित होने पर साबिक DG ISI के खिलाफ सिफारिशात पेश करेगी। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी का फैसला किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं गवादर और मुल्हिका इलाकों में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाइट रेन या ड्रिजल इतना ही इम्कान है कराची में। उसकी मेन वजह यही है कि
جو لو پریشر ایریا بلوچستان پر موجود ہے اس وقت گزشتہ 48 گھنٹوں میں وہاں پر تیز بارش برس رہی ہے. گوادر میں تقریباً 100 ملی میٹر کے قریب بارش ہو چکی ہے اور جو رخ ہے اب وہ شمال مشرق کی جانب ہے. اگر مشرق کی جانب ہوتا تو کراچی اور سندھ کے جو دیگر شہر تھے ان میں اچھی بارش ہونے کا امکان اس وقت ہو سکتا تھا. چونکہ جو شمال مشرق کی جانب شفٹ ہو گیا ہے اس کا رخ, تو یوں اب بلوچستان کے اوپر اور پھر آگے کے پی اور پنجاب اور کشمیر سائڈ ادھر تیز بارشیں ہیں. اگلے 2 دن جنوبی پنجاب سے اوپر کا علاقہ اور اسی طرح سے شمالی بلوچستان ان ایریاز میں تو دکھائی دیتا ہے کہ 1 یا 2 اسپیل اور متوقع ہیں. اب وہ اتنے ہیوی اسپیل فی الحال نہیں دکھائی دے رہے. پچھلے 3 روز سے ڈسکا شہر اور گرد و نواح میں کبھی ہلکی کبھی تیز بارش ہو رہی ہے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. مزید اس بارے میں بتائیں گے رانا غلام مصطفیٰ. بالکل شہر اور مضافات میں اس وقت آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش ہو رہی ہے, کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے اور کہیں بوندا باندی ہو رہی ہے. ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے پچھلے 3 روز سے چونکہ جو موسم ایک طرح سے ہی چل رہا ہے, آسمان پر بادل چھاتے ہیں, ہلکی پھلکی بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے قدم رک گئے ہیں اور موسم انتہائی خوشگوار ہے اس وقت. جی ادھر بٹگرام میں 2 دن کے وقفے کے بعد بارش کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے. موسم سرد ہو گیا ہے اور لینڈ سلائیڈنگ سے بالائی علاقوں میں کئی رابطہ سڑکیں تاحال بند ہیں. نور اللہ ہاشمی سے مزید جانتے ہیں. رات گئے سے بٹگرام میں موسم جو ہے وہ ابرآلود ہو گیا ہے اور صبح سے بٹگرام میں ہلکی بارش کا آغاز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے. گزشتہ بارشیں جو ہوئی ہیں اس سے جو بٹگرام کے بالائی علاقوں کی کئی رابطہ سڑکیں ابھی تک بند ہے. ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. بٹگرام کے جو مین سڑک ہے سی پیک وہ بھی مختلف مقامات پر جو ہے اس پر سلائیڈنگ ہوئی ہے اور ابھی تک وہ سلائیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہٹائی جا سکی. شاہراہ ریشم پر بھی کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے جہاں پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹا سا راستہ جو ہے وہ نکالا ہے جس سے گاڑیاں گزر رہی ہے, لیکن بڑی لینڈ سلائیڈنگ کا جو ملبہ ہے وہ اب بھی سڑکوں پر پڑا ہے. جی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں گوادر اور ملحقہ علاقوں میں 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور حالیہ بارش نے ضلع گوادر کی صورتحال خراب کر دی ہے. بسول ندی کا پل ریلے میں بہہ گیا. مکران کوسٹل ہائی وے پر ٹریفک معطل ہو گیا. مزید بتائیں گے اللہ بخش بلوچ. بالکل طوفانی بارشوں کو آج 2 دن گزر گئے لیکن آج بھی پورا گوادر شہر ابھی بھی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. یہ نیاباد کا علاقہ ہے جو کہ ایئرپورٹ روڈ سے منسلک ہے, جو شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے. 2 سے 3 فٹ پانی گھروں کے اندر جمع ہے. دکانوں کے اندر بھی پورے شٹر پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور خاص کر اسکول ہیں وہ بھی پانی سے بھرے پڑے ہیں. اور آج اسکولوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں کو چھٹی بھی دی گئی ہے. بسول کی جو ندی ہے اس میں تغیانی آنے کی وجہ سے بسول کور کی پل بھی ٹوٹ چکا ہے. ان کا ایک حصہ پانی کے ریلے میں بہہ گیا ہے جس کی وجہ سے گزشتہ رات سے ہی جو مکران کوسٹل ہائی وے ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہو چکا ہے. پرنسس آف ہوپ اور بزی ٹاپ کے مقام پر کوسٹل ہائی وے کی ایک پل ٹوٹ گیا ہے, اس مقام پہ بھی مکران کوسٹل ہائی وے ٹریفک کے لیے بند ہے. جی تو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہو رہی ہے. بعض علاقوں میں بارش نے تباہی مچا رکھی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عبداللہ مکسی سے. جی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. گوادر شہر اس ٹائم پانی میں ڈوبا ہوا ہے. پسنی, جیونی, سربندر, چاغی, نوشکی میں بھی کافی تباہی مچائی ہے بارشوں نے. تو دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ریلوے ٹریک ہے پاک ایران, مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پہ شگاف پڑنے کے باعث جو ریل سروس ہے وہ بھی معطل ہو گئی ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق 45 سے زائد جو کچے مکانات تھے ان کو نقصان پہنچا ہے. اب تک بارشوں سے 8 افراد جاں باک ہوئے ہیں, 9 زخمی ہوئے ہیں اور کھڑی فصلات کو بھی نقصان پہنچا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارشوں کی بھی مزید پیشن گوئی کی گئی ہے جس میں کوئٹہ, کلات, خوزدار, مستونگ, چمن, ہرنائی, لورالائی اور دیگر علاقے شامل ہیں. ادھر کویت ایئرپورٹ پر پھنسے 50 سے زائد پاکستانی مسافر بھی یاروں مددگار ہیں. مسافر نے کہا غیر ملکی ایئر لائن نے بھارتی اور نیپالی مسافروں کو ہوٹل بھیج دیا ہے. بات کریں گے محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے محمد صلاح الدین. دیکھیں بالکل یہ کویت ایئرپورٹ پر 50 سے زائد پاکستانی مسافر ہیں. 2 روز سے شدید پریشانی میں شکار رہ چکے. یہ غیر ملکی ایئر لائن کی
परवाज के जरिए से उम्रे की अदायगी के बाद दुबई जा रहे थे कि दुबई में मौसम की खराबी की वजह से जहाज को कुवैत पर उतारना पड़ गया था। पाकिस्तानी मुसाफिर जो है वो अल जजीरा की एयरलाइन से सऊदी अरब से लेकर कुवैत पहुंची थी कि उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों की मदीना से ये बराह रास्त कुवैत दुबई आना था। दुबई में तूफान की वजह से परवाज में कुवैत पर ही रुक गई थी, तो एयरलाइन ने 2 दिन तक इन पाकिस्तानी मुसाफिरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें खाने को भी नहीं पूछा गया, कोई सहूलतें भी फराहम नहीं की गई। तो इन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाने से अपील की है कि इनकी दादरसी की जाए और इन्हें फौरी तौर पर दुबई रवाना किया जाए। जी शुक्रिया सलाहुद्दीन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान आइंदा माली साल 24 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज अदा करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम है। हालिया इक़दामात से GDP 4% तक जा सकती है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग से इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था ज़राअत, IT और सनतों को फ़रोग देने के इक़दामात किए जा रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात के बाद रुपये को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। IMF की टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगी। नए प्रोग्राम को जून या जुलाई तक हतमी शक्ल दी जाएगी। नए प्रोग्राम के लिए टैक्स को बढ़ाना, तवानाई के शोबे और बैरूनी कर्जों में पायदारी लाना होगी। हुकूमत का बुनियादी का महंगाई और कम शरह नमू पर काबू पाना होगा। खबर ये रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक शहरी से मुताल्लिक केस में IG इस्लामाबाद की तैनाती का तस्करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG की तैनाती से मुताल्लिक हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। बात करेंगे हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए हुसैन। हाई कोर्ट में एक रोड एक्सीडेंट में जामाक होने वाली शहरी से मुतालिक केस की समाअत जारी थी और उसमें तफ्तीश जो है वो 2 साल से मुकम्मल नहीं हो रही थी। उस दौरान IG इस्लामाबाद की तैनाती का तस्करा हुआ है और अदालत ने कमरा अदालत में मौजूद डिप्टी अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने रोस्टम पर बुलाकर कहा कि वैसे तो इस्लामाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई IG तो लगा दें या जो पहले IG थे नए अफसर के आने तक उन्हें जो है वो रहने देते। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि IG वजारत दाखिला नहीं लगाना है या वैसे ही खत्म कर दें, पुलिस को फिर सुकून हो जाएगा। अदालत ने कहा कि कल सेक्रेटरी दाखिला आए थे, उनसे कहें कि IG लगाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि IG की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो नोटिफिकेशन हुआ था वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्यों IG नहीं आ रहा। 2 हफ्तों में IG तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट दें। अदालत ने कहा कि यही आर्डर जो है वो लिखवा सकते हैं। साथ साथ अदालत ने ज़ेर समाअत केस का भी हवाला देते हुए कहा कि ये मामला भी आपके सामने है और 2 साल से तफ्तीश नहीं हो रही। जी शुक्रिया आपका। पाक फौज ने गिलतरी की 21 साला शाहिदा को हेलीकॉप्टर से CMH स्कर्दू मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी 21 साला खातून शाहिदा गुज़िश्ता 4 माह से ओरेगानो का शिकार थी और पिछले 4 रोज से उसे तेज बुखार में मुब्तला थी। इस पर FTC बोनियाल पहुंचने पर शाहिदा का इब्तदाई इलाज मुआवजा भी किया गया। तमाम शदीद इन्फेक्शन की वजह से मरीज की हालत नाजुक हो चुकी थी, जिस पर मरीज को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट करने का फैसला किया गया। अब उसे स्कर्दू CMH मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर अटेंडेंट के हमरा पहुंचने के बाद उसका इलाज मुआवजा शुरू हो चुका है। मरीजा के घर वालों ने पाक फौज की खिदमत को तहे दिल से सराहा है और शुक्रिया भी अदा किया है। जी शुक्रिया आपका लाइक। कराची के इलाके सऊदाबाद में 2 डाकू शहरी से मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार हो गए हैं। बात करेंगे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस वाक़े से मुतालिक अफजल। देखिए सऊदाबाद के इलाके में घर की दहलीज पर दफ्तर जाते हुए शहरी को मुसल्लह मुलजमान ने लूट लिया है। इस दौरान पड़ोसी ने जो है छत से इन डाकुओं की वीडियो बनाई है। वीडियो में डाकुओं को कार सवार से वारदात करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान में एक कमीज सलवार और दूसरा पेंट शर्ट में मलबूस है। मुलजमान ने शहरी से मोबाइल फोन और बटुआ छीन कर फरार हुए। पुलिस का कहना है कि वीडियो में मुलजमान के चेहरे वाजे हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका अफजल। सिंध हाई कोर्ट में शहरी मोहम्मद हनीफ बिल्लो की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई। गुमशुदा शहरी की वालिदा ने बताया 1 साल पहले बेटे को सादा लिबास एहलकार कायदाबाद से ले गए थे। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए फारूक इस मुतालिक। जी बिल्कुल, जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2020 के पुराने मुकदमे में शहरी की गिरफ्तारी जाहिर करके जेल बंद कर दिया गया है। खदशा है कि जो मोहम्मद हनीफ और बिल्लो हैं उनको मुअय्यना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि फौरी तौर पर बाजियाबी हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए पुलिस अफसरान व दीगर पर को जो है वो कहा है कि इनको फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और आइंदा समाअत पर जबरी गुमशुदा मोहम्मद हनीफ और बिल्लो बादशाह को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। आइंदा समाअत पर जबरी गुमशुदा शख्स को बाजियाब ना किया गया तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अदालत ने आइंदा समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया फारूक।
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही को एंटी करप्शन अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर परवेज इलाही और दीगर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब करते हुए समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा परवेज इलाही अडियाला के वॉशरूम में गिर गए थे, उन्हें चोट लगी है, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मीनार पाकिस्तान, मोची गेट और मुगलपुरा में जलसों की इजाज़त ना देने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत हुई। बात करेंगे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। इस समाअत से मुतालिक आगाह कीजिए आबिद खान। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने पीटीआई की 2 दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें मोची गेट, मीनार पाकिस्तान, मुगलपुरा में जलसों की इजाज़त न देने के इक़दाम को चैलेंज किया। अदालत ने ये दरख्वास्तें जो है वो डीसी लाहौर को भिजवा दी हैं और कानून के मुताबिक उन पर फैसला करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजारों को कल डीसी लाहौर के रूबरू पेश होने की हदायत की है। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन मुहिम चलाने और कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। जलसे की इजाज़त देने के लिए डीसी लाहौर को दरख्वास्तें भी दी मगर उस पर सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा अदालत ये हुक्म दे कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीटीआई को जलसे करने की इजाज़त दी जाए। अब अदालत ने ये दरख्वास्त डीसी लाहौर को भिजवा दी और कानून के मुताबिक इस पर फैसला करने का हुक्म दिया है। शुक्रिया आपका आबिद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा हेडक्वार्टर का तफसीली दौरा किया गया, उनकी जानिब से मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस दौरे से मुतालिक आगाह कीजिए तारिक मुनीर भट्ट। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है नादरा हेडक्वार्टर का तफसीली दौरा किया है और उस दौरे में मोहसिन नकवी ने पूरी इमारत का विजिट किया है और प्रिंटिंग समेत तमाम शोबे उन्होंने विजिट किए और उन्होंने कहा कि गैर मौसर और जायदुल बयान शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा मोबाइल सिम को बंद करने का उन्होंने हुक्म दिया है। उन्होंने पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में नादरा ऑफिस बनाने की भी हदायत की है और वज़ीर दाखिला ने मॉडल नादरा ऑफिस के आम से सर्वर डिलीवरी में उन्होंने कहा कि बेहतर आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। नेशनल डाटा और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर पर चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मोहसिन नकवी का उनका इस्तकबाल भी किया और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर इस्तदाद हेडक्वार्टर में अहम अजलास भी हुआ और उन्होंने गैर मौसर और जायदुल बयान शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम कार्ड जल्द बंद किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्र अवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस भी खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारा नादरा पाकिस्तान की पहचान है और अवाम को तेज रफ्तार सर्विस फराहम करने के लिए नादरा के मॉडल ऑफिस बनाए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका। और एक और अपडेट्स है वो शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अदालत का काम केसेस की समाअत है, अदालत बुलाती है, हम आ जाते हैं। नैब के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं और क्या कहूं, ये उनका कहना था। और ये केस बनता ही नहीं, 50 समातें हो चुकी हैं, सिर्फ खर्चा निकाल लें, कितना हुआ होगा। नवाज शरीफ साहब के केस माफ हो रहे हैं, आपके और पीपल्स पार्टी के नहीं हो रहे, क्या वजह है? हमारे केस पे बुलाती है कोर्ट का काम है, प्रोसीड करना है, कोर्ट बुलाती है हमारे। कोर्ट तो बुलाती है लेकिन नैब ने कल इस तरह से नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दिया। नैब के बारे में तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ और अब मजीद और क्या कहूँ, ये केस बनता ही नहीं है। मेरे ख्याल में 50 के करीब हियरिंग हो चुकी हैं, इसका सिर्फ खर्चा निकालने कितना लोगों कटाई हो रही है आजकल फसलों की, तो क्या रेट निकालने जा रहे हैं आप? हमने गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है 9 लाख टन गंदम और टोटल हमारी प्रोडक्शन 40 लाख टन से ऊपर है। वहाँ ज़रूर थोड़ा बहुत क्राई हो रहा है। केयरटेकर के ज़माने में इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी गंदम और वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उस वजह से प्राइसेस का इशू हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को अपनी फसल के पूरे पैसे